So we covered this. So coming to what is regression, can you tell me historical relationship किसके बीच में देखते हैं? That's historical. We Independent and dependent variable. And dependent variable future value निकाल. और dependent variable क्या होता है जिसको हम What is the difference between independent and dependent variable? Dependent variable will be dependent on the independent variable. So basically dependent variable मैम जो हमें निकालना होता है वो dependent variable होता है. जो निकालना होता है वो independent variable होता है. मैम Dependent करते हैं वो independent होता है, जिसको predict करना है वो dependent होता है, और जिससे करते हैं वो independent. I'm talking हमारा dependent variable होगा and एडवर्टाइजिंग पे हम कितना स्पेंड कर रहे हैं वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. एग्जैक्टली मैम, क्योंकि जितनी एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड करेंगे उस हिसाब से सेल्स होगी. तो सेल्स इज डिपेंडेंट एंड एडवर्टाइजिंग इज इंडिपेंडेंट. And how we do this in regression? Like what technique we use? कैसे मॉडल बिल्ड करते हैं? Through least square method. Sorry? हम एक लीनियर मैम वो लाइन होती है मैम लाइन ड्रॉ करते हैं फिट लाइन nearest to all the points. Best fit line. Yeah. Best fit line nearest to all the points, so that हमारी error value. What is error? Error and क्या? the difference between the point and the line. Actual. The best fit line पे So you the predicted value. इसमें और दो actual and predicted value. Actual और जो हमने Actual और predicted. Predicted value में difference. सर ये predicted क्या ये regression में ये जो points है ये predicted values हैं? No ma'am, they're actual. ये actual points है मैम. ये वाले कौन से points है ये? मैम actual. मैम ये actual है. और ये point क्या होगा? ये point? Predicted होगा जो line पे होगा. True. Best fit line पे जो है. Best fit line पे जो predicted होगा. Regression ने जो predict किया है. Yes ma'am. Yes. तो ये predict किया है, ये तो हमारे past का data है. Past के data में भी predict करेगा. मैम past. Yes ma'am, उसी के through तो trend पता चलेगा. Past के data से जो निकालेगा. Yes, past के data में ही वो model fit करेगा. Okay? पास्ट के डेटा में वैल्यू हमारी 120 थी, पर रिग्रेशन एक जो लाइन ड्रॉ करता है वो मॉडल फिट करता है, रिग्रेशन उसे प्रेडिक्ट करता है. ओके, बेसिकली इट फिट्स दैट लाइन. तो रिग्रेशन के थ्रू बेसिकली 120 वाज द एक्चुअल वैल्यू, बट रिग्रेशन के अकॉर्डिंग इट कम्स टू बी अराउंड 160. ओके, ठीक है. तो ये पास्ट का रिलेशनशिप देखा, बेस्ट फिट लाइन देखी. हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यूज? बाय एक्सट्रापोलेटिंग. I'm extending the line. R square निकाल के फिर एक्सटेंड करेंगे. Yeah, by extending this line, we can do that. And how we do that? हमारे पास एक रिलेशनशिप आ जाती है between y and x. You know, इस लाइन से हमें हमारे पास ये रिलेशनशिप आ जाती है सेल्स और एडवर्टाइजिंग डॉलर्स की, एंड वी गेट वन इक्वेशन एंड वी कैन पुट द नंबर्स. एग्जांपल, अगर हमें जनवरी का कैलकुलेट करना है तो वी कैन पुट द नंबर्स. द क्वेश्चन वाज how much sales I can generate next year if I spend this much advertising dollars. So by this historical relationship, we can arrive at regression equation, and we can input the numbers of किसके input करेंगे numbers? Advertising. In advertising, okay, that is x, and we can predict values of y. So y equals to mx plus c kind of a equation, or y equals to beta 1x plus beta naught, इस type की equation होती है. पर ये beta 1 ये सब कैसे आता है? इक्वेशन पूरी ये थी ना, y equals to mx plus c. ओके, x की वैल्यू बेसिकली एडवर्टाइजिंग, SSR by SST. बेसिकली रिग्रेशन मॉडल हमें ये वैल्यूज देता है. ओके, ये अभी देखते हैं how to arrive on the. Ma'am, what is m and what is c in that equation? m is a slope. Loop and intercept. c is constant. अगर ये लाइन है,
this value is C and M is the slope, or you can say weightage. Okay, तो हमने ये देखा था कि अगर हम दो सिनेरियोज लेते हैं, फर्स्ट सिनेरियो क्या था? फर्स्ट सिनेरियो जब हम when we are taking the mean, the average. हाँ, हम कह रहे हैं When we have one variable. When we have one variable. yes, when we have one variable, basically no regression वाली सिनेरियो. ओके, कोई रिग्रेशन नहीं रन कर रहे हैं, हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है, सेल्स का वेरिएबल. सेल्स के वेरिएबल से सेल्स का मीन निकाल के एंड वी आर प्रेडिक्टिंग कि नेक्स्ट मंथ भी यही सेल्स हो जाएगी. एंड सेकंड सिनेरियो इज When we have two variables, sales and advertisement both. Dependent and independent. yes, basically we are saying कि सेल्स को हम ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं if we have advertising dollars. बेसिकली एडवर्टाइजिंग डॉलर से हम सेल्स को और ज्यादा अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं. एंड देन वी चेक कि क्या whether it's like through mean we can predict well, or is it through regression, going through regression is a better way to solve this problem. Okay, and we arrived at this sum of a square total क्या होता है basically. So what is the actual value if I say इसमें in this this green, blue and this line, if I say what is the actual value? And purple dots. Yeah, purple dots. So if you see just this एक इस point को देखते हैं, actual value क्या थी यहाँ पर? Ma'am, 120. Yeah. 120. Around 120. 126 point. Yes, 120. And actual value हमारी 120 थी, और regression model ने जो predict करी 112. 116. 116. और अगर हम regression नहीं लेते और हम कहते कि सिर्फ mean से चले 112. तो you can see कि यहाँ पर regression ज्यादा अच्छे से predict कर रहा है, because 116 is closer than 120. Yes, ma'am. Isn't it? So यही कुछ होता है what R squared does. It's called coefficient of determination. ये बताता है कि does the regression line fit the data better than the mean. Okay, and how we do it? We take explain variance by total variance. Basically sum of a square regression by sum of a square total. Basically अगर sum of a square regression ये value है और total variance अगर ये explain variance is more, then we says it regression fit the line better. समझ में आ रहा है? हमारा टोटल वेरिएंस ये था SSE plus SSR. एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर थी. ओके, एंड वी कैन explain whether the data fits better than the mean by R square. Actually, we are not able to see your pointer. Okay. So this is my actual value. This is my actual value. And this is the value जो regression ने predict करी. और ये हमारी mean की value थी. ठीक है, वो ये जो हमने अभी इससे पहले वाली स्लाइड में डिस्कस किया था. So R tells us whether regression line fits the data better than the mean. This. So ma'am, it is basically when SSR is greater than SST, then we'll apply regression. हाँ, because कितनी variance explain हो रही है, explain variance is this. Yes. और जो explain नहीं हो रही है, basically regression से ये तो ऊपर जा रहा है ना, ये regression के अंदर आ ही नहीं रहा है, regression line तो यहाँ से जा रही है, कट कर रही है, तो this is unexplained variance. Okay. तो बेसिकली हमारा जो टोटल वेरिएंस है उसमें से रिग्रेशन कितना एक्सप्लेन कर रहा है, this thing. Yes, ma'am. इसका रेशियो इज कॉल्ड R square. मैम अगर ये 50% होता तो इसका क्राइटेरिया होता है एटलीस्ट 50% होता है तो शायद तो गुड फिट होता है. हाँ, देयर इज क्राइटेरिया 50%, 60%, 70%. 0.5 का क्राइटेरिया. हाँ, इसकी वैल्यू इट वेरीज फ्रॉम 0 to 1 and so that's why 50%, 60% is a good criteria. ma'am.
Yes. Can you explain one more time? Okay, so I mentioned about R square. R square is equals to SSR by SST. You understand SSR क्या था? Yes, ma'am. Sum of square regression. For example, मैंने सिर्फ ये डेटा पॉइंट से ही एक्सप्लेन किया है अभी, बट वैसे हम सारे डेटा पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर SSE और फिर SSR कैलकुलेट करेंगे. बट जस्ट फॉर क्लियरिंग दिस कॉन्सेप्ट, आई हैव जस्ट टेकन दिस वन डेटा पॉइंट. तो सम ऑफ स्क्वायर टोटल इज दिस. अगर हमारी मीन वैल्यू यहाँ पर है जब हम कोई रिग्रेशन रन नहीं कर रहे हैं, और हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है, टोटल वेरिएंस ये हो गया सम ऑफ स्क्वायर टोटल, दैट इज SSE, this SSE plus SSR. And SSR is what? The difference between regression. अगर रन करोगे तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, और नहीं रन करोगे तो ये मीन यहाँ पर है. सो बेसिकली SSR is the explained variance जो रिग्रेशन बता रहा है. पर टोटल वेरिएंस में अब एक और कंपोनेंट बचा, दैट इज SSE, जो रिग्रेशन नहीं बता रहा है, दैट इज अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस. सो स्ट्रेंथ क्या है रिलेशनशिप की? रिग्रेशन कितने अच्छे से ये मॉडल एक्सप्लेन कर रहा है? इट इज गिवन बाय कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन व्हिच इज SSR by SST. दिस लाइन, ये वाला डिस्टेंस बाय टोटल वेरिएंस, बेसिकली वेरिएंस, दिस एक्सप्लेन वेरिएंस बाय टोटल वेरिएंस. ओके, तो ये समझ में आया मैम? बट ये पार्ट तो SSE को ही कोइंसाइड कर रहा है ना मैम, तो फिर ये मैम अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस का जो आपने अभी बताया मैम, ये SSE तो है मैम ये भी. हाँ हाँ हाँ, ये अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस है. टोटल वेरिएंस क्या हुआ? SSR प्लस SSE. और एक्सप्लेन वेरिएंस जो रिग्रेशन एक्सप्लेन कर रहा है, रिग्रेशन लाइन यहाँ तक जा रही है ना. So ma'am, we are basically trying to say what is the percentage or the proportion of the unexplained variation among the total. No, we are saying proportion of the explained variance by total variance. Regression कितनी total हमारी variance ये है, और regression कितनी explain कर रहा है. And if we deduct it from one, we'll get the unexplained variance, the proportion of unexplained variance. Yes. Okay. 1 minus SSR by SST. मैम हवा चल रही यहाँ तो मैम स्विमिंग पूल में. तो दिस इज मैम कोई उड़ के बोल रहा है. कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. मैम लगता है कोई लैंडिंग. Okay, so are you clear with this coefficient of determination, explained variance and total variance? So basically अगर हमारा R square वैल्यू ज्यादा होगा तो क्या सिग्निफाई करेगा वो? Explained variance is high. Explained variance is मैम ये गुड फिट का पता चलेगा हमें इससे कि कितना एक्सप्लेन पार्ट है आउट ऑफ टोटल वेरिएंस. हाँ, so basically अगर हमारा कुछ इस टाइप से, just 1 second, we should one here. So there is this multiple R square or basically R square value that is 0.7938. So this means 79% variance explain कर रहा है ये मॉडल. Yes मैम. इसमें मैम यही देखते हैं कि अगर 50% से ज्यादा एक्सप्लेन है तो वो गुड फिट है, अगर नहीं है तो इट्स अ बैड फिट. हाँ, whatever criteria you say कि हाँ इस पे if you want to be more strict and you feel कि 50 नहीं 60% पे चेक करूंगा और 70% पे चेक करूंगा, it's up to you. And if you have like multiple scenarios, तो तुम वो कंपेयर करोगे कि कौन से सिनेरियो में आपका R square वैल्यू ज्यादा हाई है. Linear regression में you will get just one value, but if you go through multiple regression you can get different values in different scenarios. Ma'am, so what will be driving from this? Like you said, multiple R square is 7.79. So what we are driving from it? कि 79% of variance in sales can be explained by ad spends. Basically 70% sales को आप forecast कर सकते हो, उसकी variance explain कर सकते हो.
एयर डिस्पेंस से, एयर डिस्पेंस की डेटा से। R square is 100 मैम। R square अगर 100 है, which is like quite impossible, पर 100% वेरिएंस एक्सप्लेन कर देगा और आपके पास फिर कोई और वेरिएबल डालने की जरूरत ही नहीं है, लीनियर रिग्रेशन ही सबका तो काम लाइक करेगा। लाइक मैम एडवर्टीजमेंट की वजह से हमारी 70% सेल हो रही है। दिस इज व्हाट यू वांट टू से? हाँ, yeah, you can say it like that. Yeah, so there are 3-4 ways of saying this. कि 79.4% of the variance in sales can be explained by advertisement. या 79.4% of change in sales is due to advertisement. वही जो तुमने बोला कि इससे इतना सेल हो रही है. Although there is एक y equals to mx plus c में एक c component भी होता है ना? Yes ma'am. अगर ये वैल्यू 0 हो गई फिर भी हमारा कुछ c कंपोनेंट है जो y के इक्वल हो जाएगा, तो कुछ वैल्यू तो होगी, बट 79.4% ऑफ चेंज इन सेल्स इज ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट, And this 30% is from constant variables or other variables. or other variables. Yes. Okay So- ma'am, thank you. Okay, so this is what we get from linear regression. But एक और चीज आती है यहाँ पर, हमने ये देख लिया कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू क्या है, बेसिकली हमारा स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बोले, या फिर डज द रिग्रेशन लाइन फिट द डेटा बेटर देन द मीन, और क्या प्रोपोर्शन एक्सप्लेन वेरिएंस का बाय टोटल वेरिएंस का, इससे हम आर स्क्वायर की वैल्यू या स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बता देते हैं. The percentage of variance, that is independent variable, which is explained by the independent variable. Okay, so you can go through all these things. Regression sum of squares क्या होता है, residual sum of squares क्या होता है. There's one more thing which is ANOVA table. ये क्या बताता है? ANOVA table में से भी कुछ देखते हैं ना. So ANOVA table tells us whether the model is significant or not. Okay. So for example, this is one ad sales data and you can run these codes. मैंने यहाँ पर डेटा फ्रेम खुद ही क्रिएट कर दिया था यहाँ पर, और प्लॉट भी आप रन कर सकते हो. यू कैन फिट लाइन एंड यू कैन रन रिग्रेशन. इट्स अ वेरी सिंपल कोड टू रन रिग्रेशन, एंड फिर देन यू कैन रन समरी ऑफ दिस रिग्रेशन और तुम्हें कुछ इस टाइप से एक आउटपुट मिलेगा. ओके, एंड यू कैन सी कि हाँ ये थोड़ा linear relationship है, or maybe you can fit a line. Okay, एक scatter plot हम check कर लेते हैं कि whether there is any linear relationship or not. So coming to this, you get this output, and you can understand what is this output. This is basically the same code जो हमने enter किया था. So what this is saying, sales is what our dependent variable, and which we want to explain using our independent variable, और ये हमारा डेटा को मैंने ये नेम दे दिया, and rest it gives me a residual summary. Okay, this is a summary of the residual की जो distance है from the data to the fitted line. याद है कुछ समरी हम कैलकुलेट करते थे, समरी फंक्शन यूज करते थे, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देता था समरी फंक्शन, कुछ इस टाइप से. Yes, मीडियन. तो बेसिकली हाँ, बेसिकली ये एरर है. ओके, थर्ड थिंग इज दिस इज द इंटरसेप्ट 28.65. दिस इज द वैल्यू ऑफ c. अगर हमारी इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस c, so c की वैल्यू क्या है? is 28.65, और स्लोप की वैल्यू क्या है? 13.9. this is your slope of x and this is the intercept. तो तुम ये रिग्रेशन इक्वेशन डिराइव कर सकते हो यहाँ पर 13.9x plus 28.646. मतलब ये वही चीजें हैं जो तुमने ऑलरेडी की होगी. Isn't it? Yes, Are you ma'am. able to understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेसिकली ये एक कोएफिशिएंट की टेबल होती है. फर्स्ट टेबल, ये कोएफिशिएंट की टेबल से आप ना रिग्रेशन इक्वेशन बना सकते हो कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c.
बेसिकली अगर कोई इक्वेशन कोई लाइन ऐसे जा रही है तो वी से कि इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, यहाँ पर c ये वैल्यू है और जो भी वैल्यू आप x की रखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 रखा तो, और स्लोप जो भी वैल्यू स्लोप की होगी, देन यू कैन कैलकुलेट y. ये क्लियर है? y इक्वल्स टू mx प्लस सी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन. हाँ, बेसिकली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसे हम बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x बोल देते हैं, अगर मल्टीपल है तो बीटा 2 x बोल दिया, पर बेसिकली इट्स द सेम, y इक्वल्स टू mx प्लस सी. ओके, तो इस लाइन की के जो कोएफिशिएंट्स हैं, यू कैन चेक इट फ्रॉम दिस टेबल, कोएफिशिएंट टेबल. सो दिस टेल्स द इंटरसेप्ट, दैट इज c वैल्यू, and air distance is 13.9. So 13.9x plus 28.65 ये तुम्हारी रिग्रेशन इक्वेशन बन गई. ओके, उसमें तुम ये p वैल्यू भी चेक कर सकते हो. हमें इंटरसेप्ट का p वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती, we just put this number, but air distance का ये p वैल्यू, what is this showing you? That air distance is significant. Air distance is significant means a significant p value for air distance means that it will give us a reliable guess of sales. Okay, excuse me hello. Yeah, मैम ये सिग्निफिकेंस लेवल वाला ये बता दीजिए, सॉरी p वैल्यू वाला. okay, p वैल्यू पता है अगर लेस देन 0.05 हुआ तो हमारा हाइपोथेसिस है सम, यू नो, नॉर्मल. मैम एक बार ये क्लियर कर दीजिए, थोड़ा सा मतलब भूल गए. ओके, सो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है और हम कहते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस है कि व्हाटएवर, यू नो, देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप एंड एच ए क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल, सॉरी, एच नॉट इज देयर इज नो रिलेशनशिप, नो रिलेशन, बिकॉज एच नॉट इज स्टेटस क्यू वाली वैल्यू जो होती है, एच नॉट सेज देयर इज नो रिलेशनशिप always. Okay, और HA कह रहा है alternate hypothesis that there is linear relationship. Okay, तो हम वो चेक करते हैं हमारी P वैल्यू क्या आती है, और अगर P वैल्यू हमारी फॉर एग्जांपल 0, यहाँ पर 0.05 की वैल्यू है हमारी अल्फा, अगर P वैल्यू हमारा 0.05 से कम है, यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? किसे रिजेक्ट करेंगे? किसे रिजेक्ट करेंगे? मैम यही तो याद नहीं आ रहा है. नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे. हाँ ठीक, ओके, ठीक है. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानिए, और यू कैन यू नो गो थ्रू वन ऑफ माय वीडियो ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कि हाइपोथेसिस कैसे हम डिराइव करते हैं. नल हाइपोथेसिस मींस हमेशा स्टेटस क्यों कि कोई चेंज नहीं है, वॉट एवर यू आर डूइंग सब में ये बोलोगे कोई चेंज नहीं है, और हम हमेशा नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं. नहीं, अगर वैल्यू तुम्हारी 0.05 से ज्यादा है, ऑब्वियसली यू विल नॉट रिजेक्ट, बट द थिंग इज दैट यू ऑलवेज रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. एक सेइंग है, यू नो, यू आर इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी. ओके, जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो ये नल हाइपोथेसिस की नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन x एंड y, क्योंकि हमारी p वैल्यू 0.05 से कम है, इसको रिजेक्ट कर देते हैं, और इसके कारण हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप, द p वैल्यू सिग्निफिकेंट, देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप. ओके, So we have got these two p values. एक है एड स्पेंड की, और एक और p वैल्यू दिख रही है यहाँ पर. ओके, बेसिकली दिस इज नथिंग बट ये तुम्हारी अनोवा टेबल. तो जब भी तुम आउटपुट देखोगे सबसे पहले, और ये बता रहा है कि हमारा मॉडल सिग्निफिकेंट है या नहीं. बेसिकली जो r² की वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं. दिस इज व्हाट अनोवा टेबल टेल्स. तो जब भी तुम्हारे पास ये कुछ टेबल आती है, यू नो, ये आउटपुट आता है रिग्रेशन का, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू चेक इज सबसे पहले कि मॉडल सिग्निफिकेंट है या नहीं. ठीक है, तो तुम सबसे पहले ये वैल्यू देखोगे 0.05 से कम है या नहीं.
अगर ये वैल्यू कम है दैट मीन्स योर मॉडल इज सिग्निफिकेंट. ओके. ओके. सेकेंड थिंग तुम चेक करोगे, अच्छा मॉडल मेरा सिग्निफिकेंट है, दैट इज स्टेप 1. ये क्लियर हो गया. सेकेंड थिंग इज जो भी वेरिएबल्स है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं. एड स्पेंड सिग्निफिकेंट है. It can give reliable guess of sales because Yes, P ma'am. value is less than 0.05 से कम है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो फिर तुम ये चेक करोगे कौन कौन से वेरिएबल सिग्निफिकेंट है, और उन वेरिएबल सिग्निफिकेंट है. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि तुम रिग्रेशन इक्वेशन कैसे बनाओगे. ओके. और फिर कौन से वेरिएबल्स कितने इंपॉर्टेंट है वो आपकी ये वाली वैल्यू आपको देगी, द कोएफिशिएंट और द वेट. ओके. We have to check this value for every variable that we are considering. Yes, yes, exactly. This is what we are going to do in our road trip case study. So we'll go through 3-4 scenarios and we'll see कि हमारी p वैल्यू क्या है, हमारी मॉडल का सिग्निफिकेंस क्या है, हमारा p वैल्यू क्या है, हमारे उस वेरिएबल के लिए एस्टिमेट क्या है, कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कौन से वेरिएबल्स हम कंसीडर करेंगे और कौन से वेरिएबल्स हम कंसीडर नहीं करेंगे. मैम ये सेम चीज हम लोग एसपीएसएस में भी तो करते हैं. एग्जैक्टली. पर एक और चीज है इसमें. सो यू विल गेट टू नो व्हाट इज मशीन लर्निंग, what we are doing different. अभी तक वही किया है ना जो सब हमने SPSS में करते थे. Yes, ma'am. तो बस यहाँ पर हम मशीन को लर्न कराएंगे और मशीन से थोड़ा काम करवाएंगे. This is what we are going to do. Okay. So you can go through all this and you'll be able to understand more कि इसमें क्या है. Okay, 2 participants have raised hand. Yes. Yes, tell me. Ma'am, can you switch back to that slide only? Which one? This? Yes, this one. हम इसमें जो आप वेरिएबल्स कह रहे हो जिसका चेक करना पड़ेगा हम लोग को सिग्निफिकेंस लेवल, तो जैसे इसमें एड स्पेंड एक वेरिएबल है, तो जितने जैसे इसमें 0.0001 है, तो ये मैम आप कह रहे हैं 0.01 से कम है तो ये एक्सेप्ट होगा. 0.05 से कम है. सॉरी लेवल या हाँ. यस मैम. तो मैम जितने सिर्फ एड स्पेंड है, जितने वेरिएबल्स होंगे सबका चेक करना पड़ेगा मैम. एक ही टेबल आ जाएगी तुम्हारी, वो देखते हैं अभी. ओके मैम. वो अभी मल्टीपल रिग्रेशन हम देखते हैं. तो ठीक है, ये वैल्यू हमने. ओके भारत, यस टेल मी. मैम यही था मैम डाउट. ओके. तो एक वैल्यू और आती है एडजस्टेड आर स्क्वायर. ठीक है, ये भी याद रखना. क्या होता है कि हमारा जब मल्टीपल रिग्रेशन रन करते हैं हम और सारे वेरिएबल्स ऐड करते रहते हैं एंड वी से कि रिग्रेशन मॉडल में ये वेरिएबल भी डाल दो, दूसरा वेरिएबल डाल दो, एंड एज यू कीप इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती रहेगी. पर क्या मॉडल सिग्निफिकेंट है या नहीं? क्या वो वेरिएबल ऐड करके इज इट एक्सप्लेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल? नो मैम वो मतलब गलत हो जाएगा क्योंकि बार बार ऐड हो रहा है वो. हाँ, बिकॉज या सो एडजस्टेड आर स्क्वायर एडजस्ट कर देता है बाय नंबर ऑफ सैंपल्स एंड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. सो एक पॉइंट ये याद रखना कि एडजस्टेड आर स्क्वायर तभी इंक्रीज होगा अगर हम सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर्स ऐड करते हैं, जबकि आर स्क्वायर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग इफ वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वेरिएबल्स. ओके. So you have to select कि कौन सा मॉडल हम के साथ हम जाएंगे, whether adjusted R square is increasing, whether R square is increasing, all those things. Okay. So here begins our case study. So section H decides कि एक road trip करते हैं. So some of you who scored little low were like feeling low कि about C1 component. So everyone in the class decides कि चलो एक road trip करते हैं and let's go to Spiti. तो हमारे जो CR है प्रतीक, everyone selects him as in charge of all the logistic involved. He has to plan every detail. क्या schedule होगा, कहाँ पे stop करेंगे, ये सब चीजें we give the task to प्रतीक. So प्रतीक के पास 2 चीजें हैं, या तो वो disappear हो जाए और हमारे calls को आंसर करना बंद कर दे, और प्रतीक बेस्ट ऑप्शन है वो. हाँ, sorry what? So he has these 2 options.
So Tanmay, okay, Tanmay is in our class only. Yes, ma'am. Okay, Ma'am, are we seriously going? we'll go after your placement, definitely. Okay, so this is the context of this road trip. तो प्रतीक क्या करता है, प्रतीक के पास सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि अच्छा ठीक है स्पीति चलते हैं, डिस्टेंस इज 800 किलोमीटर्स एंड इट्स अ 18 आवर राइड, थोड़ा इट्स गोइंग टू बी अ फन राइड, तो 18 घंटे के 24 घंटे लगा देंगे, ठीक है. एंड द फॉलो अप क्वेश्चन व्हाट प्रतीक हैज इज कितना पैसा हम एलोकेट करें फॉर पेट्रोल. ओके, फ्यूल के लिए कितना अमाउंट हम एलोकेट करें. दिस इज हाउ यू बजट, राइट? So he approaches this problem with a science-oriented mindset, and he thinks that there is a way to estimate the amount of money needed based on the distance he'll be traveling. तो कितना distance travel कर रहा होगा उसके according amount of money कितना जरूरत है वो कैलकुलेट किया जा सकता है. Is he right? कि हमें पेट्रोल का प्राइस हम अमाउंट कितना हम बजट करें पेट्रोल के लिए वो हमें बताना है, और वो सोच रहा है कि अमाउंट ऑफ मनी नीडेड इज बेस्ड ऑन डिस्टेंस, कितनी दूर जाएंगे उतना ज्यादा पैसे लगेंगे. इज ही राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. He is right, ma'am. Okay, so प्रतीक के लैपटॉप में, and we can't go in car because we are like 88 students, and I have invited myself क्योंकि otherwise story कौन बताएगा. So प्रतीक को प्रमोट कर देता है, वो बस, he has bus, and he was like tracking his bus efficiency कि जब एक बार वो इतने किलोमीटर्स उसने ड्राइव किया था तो उसने इतना पेमेंट किया था टू फिल द टैंक, फिर इतने किलोमीटर्स ड्राइव किया तो इतना पेमेंट किया टू फिल द टैंक. ओके, तो प्रतीक क्या करता है, इन दो वेरिएबल्स से एक रिग्रेशन रन करता है. ओके, फेयरली सिंपल, कर सकते हो ना ये? यस मैम, यस मैम. एक CSV फाइल बनाना, अमाउंट पेड की वैल्यूज डाला, किलोमीटर्स ड्रिवन की वैल्यू डाला, और एक रिग्रेशन रन करना, ठीक है. तो हमारे पास कुछ ये वैल्यूज आई. एक्सप्लेन कर सकते हो इसमें क्या क्या चीजें हैं? मैम इंटरसेप्ट है व्हिच विल बी कांस्टेंट. सबसे पहले क्या देखेंगे? p value of the variable. p value of the model की value of a node. First will be model reliable है. Then variable. Ma'am, the significance of the model. हाँ, मॉडल रिलायबल है, ठीक है, फर्स्ट हो गया. गो Which is lower than 0.05. नाम वेरिएबल का p value सिग्निफिकेंट है. किलोमीटर यानी ले सकते हैं. वेरी गुड. Yes, ma'am. और क्या देख सकते हैं, और क्या क्या मिल सकता है हमें? r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 22 गुडनेस ऑफ फिट नहीं है, कम है. गुडनेस ऑफ फिट से कम है थोड़ा. ओके, सो ये वाली, और हम एक इक्वेशन भी बना सकते हैं यहाँ पर. हम ये जरा गुडनेस ऑफ फिट वाला लॉजिक प्लीज समझा दो. हाँ मैम. अच्छा, ये तुम मेरी वीडियो पर से देख सकते हो. एंड SSR SSE इट इज द सेम. गुडनेस ऑफ फिट इज कितनी एक्सप्लेन्ड वेरिएंस है, R स्क्वायर इज कितनी एक्सप्लेन्ड वेरिएंस है बाय टोटल वेरिएंस. ओके मैम, तो ये कैसे पता चला कि जैसे 22.6% है तो गुड फिट है? नहीं है, क्योंकि R स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया था ना? explained upon SST. SSR upon SST. Yeah, basically explained variance by regression and total variance. ज्यादा होगा कि 70% of the variance explained variance out of total variance. ठीक है, तो that means it's a good fit. तो यहाँ पर 22% है which you are saying कि it's not a good fit. ठीक है, तो हमारी ये चीज हो गई. मॉडल हमारा सिग्निफिकेंट है, हमने किलोमीटर्स ड्रिवन वाला वेरिएबल जो लिया, प्रतीक इज राइट, एंड वी कैन गो विद दैट. बट एक इशू हमारा ये क्या आ गया कि मल्टीपल R स्क्वायर वैल्यू हमारी कम थी, 22.6%. तो अब क्या होता है, कहानी में ट्विस्ट आता है और मिताली और कार्तिकेय को लगता है कि प्रतीक ना ठीक से काम कर नहीं रहा है, उसे एक और वेरिएबल ऐड करना चाहिए, उसे ऑयल प्राइस भी ऐड करना चाहिए. तो जब प्रतीक ने ये किलोमीटर्स ड्रिवन वाला डेटा उठाया, तब तक क्या प्राइस था ऑयल का, पेट्रोल, डीजल, व्हाटएवर इट बी, तो ये चीज भी इंक्लूड कर लेना चाहिए. ओके, दिस इज व्हाट मिताली एंड कार्तिकेय फील्स.
तो एक रिग्रेशन डायरेक्ट नंबर ऑफ लीटर्स ले लेते हैं ना, क्या डायरेक्ट नंबर ऑफ लीटर्स, यस वो भी डायरेक्ट नंबर ऑफ लीटर्स ले लेते हैं, पर प्रतीक के पास था नहीं ना वो डेटा। प्रतीक के पास डेटा था कि जब टैंक फिल किया तब कितना अमाउंट पे किया, उसके पास वो डेटा नहीं था। he had amount paid to fill the tank. तो गलती है ना मैम ये तो। What you usually do, पता नहीं कि टैंक में कितना पेट्रोल ऑलरेडी था या नहीं था, वो तो हम ऑलरेडी वैसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। बट इफ यू डोंट हैव दैट डेटा, दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल, कई बार हमारे पास वो डेटा होता नहीं है। सो ही हैड दिस डेटा ओनली कि जब उसने पेट्रोल फिल कराया तो कितने पैसे उसने दिए और कितने किलोमीटर्स उसने ड्राइव किया। ओके ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. और इवन इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, जस्ट सी इट कि एक और वेरिएबल जब हमने ऐड कर दिया, ओके, इफ आई डोंट से इट ऑयल प्राइस, इफ आई से वेरिएबल 2, वेरिएबल 1, और फिर रिग्रेशन में क्या चेंजेस आते हैं, सो वी कैन बेसिकली द आइडिया इज की टू अंडरस्टैंड विच मॉडल इज द बेस्ट, विच वन वी शुड गो विथ। ओके, तो मितालिका आदित्य ने जब बोला कि ऑयल प्राइस भी ऐड कर दें, तो प्रतीक ने उनकी बात भी सुन ली एंड ही ran this one more regression, that is regression 2। ठीक है, इसमें किलोमीटर्स ड्रिवन तो लिया, उसके साथ ऑयल प्राइस भी। क्या चेक करेंगे सबसे पहले? significant value of the model, value of the model। फर्स्ट थिंग सिग्निफिकेंट है? No, ma'am. no ma'am, yes ma'am, yes it is significant, e to power minus 09, it's significant, इसमें काफी सारी zeros लग जाएंगी। okay, so this is something like 0.00000005043, something like that, is that number। okay, so इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये वैल्यू क्या है। एक और चीज भी कर सकते हो तुम, राउंड फंक्शन यूज कर लेना अगर तुम्हें ये पॉइंट में समझ नहीं आ रहा है। अदरवाइज जहां पे भी ई की वैल्यू होती है तो देन इट्स लाइक यू नो इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर। ओके, एक्सपोनेंशियल हाँ डिक्रीमेंट है इसमें। ओके, सो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि हेलो यस हम ये जो ई है तो इट वुड बी लाइक 0.009 ऐसे करके चलेगा ये? इट वुड बी लाइक समथिंग लाइक 0.0000 सम 8 और 9 मैम into 10 raised to power -9 हो जाएगा आई थिंक। हाँ 1/10 to power 9 बेसिकली। ओके ठीक है, तो उतनी वैल्यूज बेसिकली दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 5 0 4 3 बेसिकली ये वैल्यू है, दिस इज दिस वैल्यू 1 2 3 4 दिस। ठीक है, तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि 0.05 से तो बहुत बहुत छोटी वैल्यू है ये, isn't it? यस मैम। yes ma'am, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन मॉडल सिग्निफिकेंट है, यस इट इज सिग्निफिकेंट। सेकंड थिंग इज वेरिएबल भी हम वेरिएबल्स की p वैल्यू देखेंगे। वेरिएबल की वैल्यू देखेंगे। वेरिएबल सिग्निफिकेंट है? मैम दोनों है। Yes, ma'am. दोनों है। दोनों है। और आर स्क्वायर की वैल्यू? आर स्क्वायर भी 90 है, 90%। मैम फिट है। तो यानी Fit है। कार्तिक और मिताली ठीक बोल रहे थे। Yes, Isn't ma'am। it? हाँ ले लेना चाहिए Yes, था ma'am. वो ऑयल प्राइस भी। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो हमने ये सब पॉइंट्स देख लिए। ठीक है, मॉडल मैम एक सिग्निफिकेंट बार वेरिएबल दिखा दीजिए पीछे करके, ये वेरिएबल थे। जस्ट अ मिनट। ओके, तो ठीक है, हमारा फर्स्ट वाले में हमारा सब चीज ठीक थी बट हमारा आर स्क्वायर वैल्यू बहुत कम था। और सेकंड सिनेरियो में हमारा आर स्क्वायर वैल्यू भी अच्छा है, वेरिएबल भी सारे ठीक है, इट्स लाइक सिग्निफिकेंट, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू यू नो इन एक्सप्लेनिंग आर डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज अमाउंट पेड। आर स्क्वायर की वैल्यू भी बहुत सिग्निफिकेंटली एकदम इंक्रीज हो गई, 22% थी और 90%। स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप हैज आल्सो इंक्रीज्ड। ओके, तो ये बेटर है या फिर रिग्रेशन फर्स्ट वाला सिनेरियो 1 इज बेटर और सिनेरियो 2 इज बेटर? सिनेरियो 2। सिनेरियो 2। Scenario 2. अब क्या होता है, अब कुणाल सजेस्ट करता है, दिस इज सिनेरियो 3, कि प्रतीक शुड आल्सो ऐड नंबर ऑफ पैसेंजर्स।
उसे लगता है कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स भी ऐड कर दोगे तो तुम अमाउंट पेड को और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो. दिस इज व्हाट ही थिंक्स. तो इस पे रिग्रेशन रन करें. लेट्स चेक. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमने इस पे रिग्रेशन रन किया. फर्स्ट थिंग इज आवर मॉडल की पी वैल्यू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी वैल्यू ऑफ मॉडल? इज इट Significant. That's significant. Variables. But the variable is मैम not पैसेंजर्स को छोड़ के बाकी सब oil price are significant. significant. Number of passengers is not significant. Not significant. Number of passengers is not significant. Okay. हमें फिर हम ये इसे इक्वेशन में डालेंगे ही नहीं because it's not significant. Okay. And rest is the same. और estimate value भी तुम चेक कर सकते हो. मैम R square वैल्यू बढ़ गई है. R square 91% value हो गई. ज्यादा चेंज बहुत नहीं आया. मिनिमल. but minimal change आया. Exactly. हमारी यहाँ पर वैल्यू थी 9082 और एडजस्टेड इज 90 के करीब. और एडजस्टेड आर स्क्वायर मतलब 1% भी इंक्रीज नहीं हुआ. बट उस वेरिएबल को ऐड करने का फायदा ही नहीं है ना. Isn't it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम अगर वैल्यू सिग्निफिकेंट होती है वेरिएबल्स की तो इनके आगे ये स्टार्स बन जाते हैं. हाँ, एग्जैक्टली. ओके. 0.05 से कम होती है तो वो स्टार्स बन जाते हैं. ओके. सिग्निफिकेंट होती है तो ये स्टार बन जाते हैं. ओके. Next is someone now suggests that Prateek should also add driver's mood as an independent variable in this model. Driver का mood से कुछ फर्क पड़ेगा? No, ma'am. Why would we be removing the number of passengers variable when And it ma'am, is how not can we significant? put a Sorry, why we are Ma'am, removing? why we are not removing the number of passengers as the variable because it hasn't been significant in the Ah, model. yeah, we will remove this. We will not consider scenario 3. अभी तक first, second और third scenario में कौन सा scenario best है? Second scenario. हम third scenario नहीं लेंगे. Ma'am, but we're considering the driver mood along with that variable, so why don't we remove it permanently so that there is no confusion? हाँ, we'll do that. We can do that. But वो चीज हाँ वो एक रन ये भी कर सकते हो, right? एक रन ऐसे भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स को रिमूव करके और फिर ड्राइवर मूड के साथ देख लिया जाए. That you take only these three, right? Okay. Yes, Ma'am, one more thing. Ma'am, driver mood is not quantitative; it's qualitative factor. Then how we have given numbers to it, like 2, 2, 3, 1? No, it's quantitative. Like 5. Driver's mood. Yeah, it's quantitative. On a scale of 1 to 5, which Like best how happy is. 5 means I have adrenaline rush and feeling like F1 racer today. आपको बता दूंगा. Okay. ठीक है. मैम ये लास्ट वाला क्वेश्चन बता दीजिए एक बारी, ये ऑयल प्राइसेस वाला. So oil prices वाला क्वेश्चन था कि which is the most important variable to predict amount. So अगर हम रिग्रेशन की इक्वेशन बनाते हैं और स्लोप उसका ज्यादा हाई है, बेसिकली बेस उसका ज्यादा हाई है, या फिर हम इससे ही भी चेक कर सकते हैं कि अमाउंट पेड, अगर हम सेकेंड वाला सिनेरियो लेते हैं, अमाउंट पेड पे सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका है? ऑयल प्राइस का. बिकॉज 1% अगर 1% किलोमीटर 1 यूनिट चेंज करते हैं किलोमीटर्स ड्रिवन में, ओके, 1 किलोमीटर फॉर एग्जांपल 7 किलोमीटर्स था, 7 से 8 किलोमीटर्स कर देते हैं तो हमारा अमाउंट पेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी 9 से 100 से 109 हो जाएगी. ओके. पर अगर हम ऑयल प्राइस का 1 यूनिट चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 76 प्राइस लिया था हमने और 77 कर देते हैं तो हमारा अमाउंट पेड चेंज हो जाएगा 117 से. ओके. सो ऑयल प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल. ओके. उसका ये बीटा, ये जो वैल्यू है, यही तो वैल्यू है, ये बीटा 2 इज वेरी हाई. ऑलराइट. सो which is the most important variable to predict amount? It's oil price, and 1 unit change in this predictor will change the amount paid by how many rupees? 117. Yes. So how much money he needs to budget for fuel for their
for our destination to Spiti. If we go with scenario 2, you can calculate it, right? 9,030. Ma'am, using the equation. Yes, you can calculate it and you can post this on forum. Now, there is change of mind. We have like 88 students in class and everyone is like super excited and they start thinking and reconsidering the current situation. And they feel, Spiti nahi, let's go to some other destination. And it's like it is becoming quite difficult for Prateek to calculate the amount. कि regression line में आप वो value रखोगे, वो calculate करोगे और ऐसे we have and if we have like 88 destinations, here I'm giving the option of only 8. So what Prateek thinks is कि हमने machine को तो learn करा दिया. Let the machine learn and let the machine work. What we can do is हम एक ट्रेनिंग डेटा सेट, टेस्ट डेटा सेट क्रिएट करते हैं. हम अपनी डेस्टिनेशंस रखते हैं, शिमला, स्पीति, ऋषिकेश, नीमराना, ऑल दीज डेस्टिनेशन दैट आई आस्क्ड यू टू टेल मी. और हम इसमें किलोमीटर्स ड्रिवन भी मेंशन कर देते हैं. एंड बिकॉज रिग्रेशन 2 हमारा बेस्ट था तो मैंने ऑयल प्राइस भी मेंशन कर दिया. यू कैन चेंज दीज वैल्यूज. ओके, यू कैन सी द डिफरेंस. एंड यू हैव टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ टेस्ट डेटा. अब क्या करना, ट्रेन डेटा की एक CSV फाइल होगी और एक होगी ट्रेन डेटा से यू हैव टू अराइव एट योर रिग्रेशन इक्वेशन, यू हैव टू अराइव एट योर मॉडल. अब जब मॉडल बन जाएगा देन यू हैव टू क्रिएट दिस टेस्ट डेटा और इस टेस्ट डेटा की एक फाइल बनानी है, दैट इज CSV फाइल. एंड देन यू यूज दिस प्रेडिक्ट फंक्शन. यहाँ पे रिग्रेशन 1 से मैंने प्रेडिक्ट किया है, आप यू कैन पुट रिग्रेशन 2 हियर. ओके, रिग्रेशन 2 हमारा कौन सा था, जहां पर हमने 2 वेरिएबल्स लिए थे. दिस, ओके, दिस इज आवर रिग्रेशन 2. सो यू कैन यूज दीज 2 वेरिएबल्स, दैट इज आवर रिग्रेशन 2, एंड यू कैन टेक दिस डेटा एंड यू कैन प्रेडिक्ट. इससे क्या होगा, जो भी तुम्हारा ट्रेनिंग डेटा सेट है इसमें अमाउंट पेड ऑटोमेटिकली तुम्हारा आ जाएगा. You don't have to do the calculation manually. शिमला के लिए कितने पैसे, स्पीति के लिए कितने, ऋषिकेश के लिए कितने, ये सब चीज, ये वैल्यूज तुम्हारी आ जाएगी. Okay, so this is one exercise that you have to do. So what do you think? Isn't it like a better idea rather than going with traditional और तुम calculator से सब calculate करो and you have like 88 students और उन सब students की destination if you have to calculate the amount paid. Isn't it a better idea? Ma'am. Ma'am, can you share the recording on LMS? I'll share the recordings. I'll share this PPT as well. So what you have to do is today by 8 p.m. By today by 8 p.m. you have to give me the details of this. कितना amount paid, कितना आ रहा है तुम्हारा? Okay. You have to run all the regression scenarios and check कि regression 2 से फिर आप check करोगे कि what is the amount paid for these destinations. Okay? Okay, ma'am. So are you able to understand this? How is it? Regression is tough or easy? Now you have understood. How we will calculate the amount? Amount regression करेगा. You don't have to calculate the amount. You have to just run this code. Okay. ये डेटा, ये CSV फाइल में एक ये डेटा डालोगे, दैट इज टेस्ट डेटा. सबसे पहले तुमने डाला अपना ट्रेनिंग डेटा सेट. ट्रेनिंग डेटा सेट ये वाला या फिर ये वाला जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, एंड यू नो कि अब सारे वेरिएबल्स से भी रन कर सकते हो एंड देन यू नो कि सिनेरियो 2 इज द बेस्ट. सो सिर्फ इन 2 वेरिएबल से तुम रिग्रेशन 2 एनालाइज करोगे एंड रिग्रेशन 2 की वैल्यू, दैट इज 1 डेटा सेट. अब एक और डेटा सेट तुम रीड करोगे विच इज योर टेस्ट डेटा सेट, क्योंकि तुम्हारा मॉडल बन गया है. देन यू विल रन योर मॉडल ऑन दिस टेस्ट डेटा सेट एंड यू प्रेडिक्ट, और रिग्रेशन तुम्हें ये वैल्यूज देगा. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मार्क्स किया हुआ है. फॉर फर्स्ट डेस्टिनेशन 1000 इज द रुपीज, सेकेंड डेस्टिनेशन दिस इज द अमाउंट, दिस इज द अमाउंट. ये रिग्रेशन खुद कैलकुलेट करके देगा तुम्हें. Okay. Ma'am, one thing, ये तो समझ आ गया that we have to read this data and then we have automatically we'll get the results. Ma'am, जिससे पहले वाला जो डेटा है जो आपने बोला है वो भी हमको रीड करना पड़ेगा.
हाँ जो ये हमारा second scenario, if so eventually we will pick second scenario because that's the apt one. यस एक डेटा सेट डालना, ये वाला पूरा डेटा सेट डाल सकते हो क्योंकि तो इसमें मैम ये बेसिकली हमें एक्सेल में डालना पड़ेगा ना पहले, फिर उसके हाँ बाद हम CSV करके रीड करेंगे। यस एग्जैक्टली और फिर उसके बाद हम फाइनली विल पुट द फाइनल वन जिससे हमें फाइनल रिजल्ट आएगा, द लास्ट कोड। एग्जैक्टली ओके मैम। ठीक है। Ma'am, for final code we just have to run only one command that you have mentioned. yes exactly, just one command, predict, सिर्फ predict function use करना है। Okay ma'am. So this is what machine learning does. You make a model, you create one model, you check whether the model is significant or not based on historical data, and you check all these parameters whether it's significant or not, and then you say okay, my model is good, and now let's take the test data. Test data वो ही data होता है, उसमें क्या होता है, जो आपको predict करना होता है वो values नहीं होती है। तो इस टेस्ट डेटा में आपकी अमाउंट पेड वाली वैल्यू नहीं है, तो टेस्ट डेटा हम उस मॉडल में डालते हैं और रिग्रेशन आर हमें और या मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हमें वो अमाउंट पेड वाली वैल्यू दे देता है। ओके, सो दिस इज मैम बेसिकली टेस्ट डेटा हमें कभी भी रन करना होगा, उससे पहले हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि हम कौन सा मॉडल प्रेफर करते हैं। एग्जैक्टली सो मैम द मेन वर्क इज आइडेंटिफाइंग द मॉडल, देन इट इज द टेस्ट चुनाने। एक बार तुमने मशीन को लर्न करा दिया कि ये मॉडल है, मशीन इज डूइंग गुड, दिस मॉडल इज व्हाट आई वांट टू गो विद, अब उस मॉडल में तुम वो टेस्ट डेटा रन कर लेते हो। ओके मैम। सो ऐसे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी देखेंगे। व्हाट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन? लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज इवन लाइक मच मोर इंटरेस्टिंग देन रिग्रेशन। बाय द वे, डिड यू फाइंड दिस इंटरेस्टिंग और नॉट? Yes ma'am, it is. Yes ma'am, it is interesting. Ma'am, it is interesting. It is interesting. And at the end it looks easy also. It's very easy. So वो problem की regression is बहुत difficult and the kind of thing you were saying about it on WhatsApp, वो अब थोड़ी चीजें समझ में आ रही होंगी। Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, so you have to post this at 8 p.m. okay, and next week also we'll do little bit of regression and I'll share you some more exciting examples and we'll do that we'll solve that together. Okay. Yes ma'am. Okay ma'am. Okay ma'am. So please do post on that forum by 8 p.m. whatever you get इस वाले डेटा सेट से, टेस्ट डेटा सेट से कि कितना अमाउंट पेड रिग्रेशन। मैम डेटा सेट भी तो चाहिए होगा हमें, लाइक वी डोंट, ये टेस्ट डेटा है और वो तुम्हारा ट्रेन डेटा सेट। मैम स्क्रीनशॉट ले लें हम और यू विल बी अपलोडिंग दिस वीडियो ऑन द फोरम। आई विल अपलोड दिस पीपीटी। ओके मैम। ओके, ऑलराइट, ओके, बाय बाय। बाय मैम। थैंक यू मैम। सर कुछ बोलना चाहता लगता है। काम में सर गए गुड़गांव वाले होस्ट वाले सर है, उनसे बात कर ले। लगता है सर बोलने वाले थे प्लेसमेंट नहीं है इस साल। अपना देख लो।